announced and we presented the change makers of Indian manufacturing in Bangalore. We launched the book Change Makers of Indian Manufacturing and people have accepted it. It was the first magazine and I am also so happy that to bring out those stories and the kind of inspiration what these change makers are bringing is exemplary. At Changemak 2023 we had Shankar Tekwani, who is one of the change maker who came to our stall and was present today. So how was your experience? Thanks for having me, Hari. Experience of being a change maker. It's been 12 months or so. I'll tell you it is amazing. Though you can call me change maker, but in true sense, the amount of changes which I have brought in myself in last 12 months, it's more than what I achieved in last 45 years. Why I'll tell you. It is a responsibility honor. It's a tag that you are a change maker. It's not easy being a change maker. It's a responsibility. It's a responsibility so that you can motivate and inspire youth of the country so that they can achieve their dreams and inspire others. It's a chain actually. We have started, we are the first link of the chain and I think it's again a long journey. It's not over yet, my friend. We need to work hard. We need to, prove ourselves that we are worthy enough of being a change maker. So it's fantastic, it's challenging and I think I'm loving it. I'm definitely going to, evolve myself and keep myself ready for the future challenges. So it is so humble of you, Shankar Saab, for talking about this. You are also in the stall today. You met so many people. You have seen so many people are writing these challenges. So how was your interaction with these people? Yeah, people actually very, very good to see for them that this kind of book has been introduced. If my memory serves me right, even I am fond of reading books of various personalities who inspires you. I have read a lot of autobiographies, but never ever in my knowledge that this kind of book was ever written for people of the manufacturing industry. So thanks to you, Hari, actually that was your idea. And people also gave me the reaction that this is absolutely bang on target for them. A lot of people bought books, a lot of people are going to order and we also presented gifts to them and they were really happy to see 12 people from different backgrounds and they were sure that it is going to inspire their children or their near and dear ones. So and they congratulated author also. So I need to convey those messages to you. Thank you. Definitely, it's a good work done, and as I told you, it's a journey begun actually for you and for all of us. All of us. Do you know in NGMAC 2023 we have many change makers? Yeah. We have Rakesh Agarwal, Laser Technologies. We have Dr. Arvind Patel, Valgro. We have Rajendra Dudey of Shubh-Line. Yeah. But Rajendra Dudey of Shubh-Line is not in Gandhinagar. But yes, Rakesh Agarwal and Dr. Arvind Patel, maybe they're in their store. Would you like to go and meet them? Absolutely, it will be honor to meet them after 12 months or so, and let's see what they are. I'm also excited, Yeah, meeting all people together. Yeah. I never thought, even I don't know, they know that, you all are here. So it will be a surprise for them, and let's go and check out with them and see what they have done in last 12 months or so. And I'm pretty sure the Arvind is a very dynamic guy. Arvind is very passionate about what he has done, what he has achieved. And if I have to speak of Rakesh, I have learned that there is no better marketer than Rakesh Agarwal. So let's go and meet with them. Yeah. So we are here at Laser Technologies and I think he is already... Yeah, he's there with some customers. So actually today Shankarji was there at our stall. Oh. So meeting many visitors. Okay, great. And that was our all idea that we need manufacturing leaders who are accessible, who can share their experience to people. Yeah, So Shankar is one you can look up to. Of course, I am following your footsteps, my friend. So when I told him Yeah. that we have actually 4 change makers in this NGMAC, Yeah. he told why can't we go and meet. So Yeah. there is Rajendra Dudey is also having a stall, but Okay. he is not there. So but I think he is with his customer. Once you finish it, I would like to request to go and meet Dr. Arvind Patel, who is there in hall 7. We all three can share our inputs with him, and so that people can gain. Yeah, that's that's a good idea. Once you finish, we will go. Yeah. Yes. So he's your customer? He's my friend, Hello. customer come friend. Hello. He is Mr. Naresh Sihag, Ah. and you should also take some inspiration from him because he was
you know, my life's first entrepreneur, working from the ground level, riding on Caliber bike, I think, and doing marketing in Pithampur areas in 2002, 2003, I think. Yeah, that time. So that time I was studying. He was my senior, and he started his own business, and we looked, you know, to him. So he has played a big role. Big role, yeah. You can say that. You can say that. So I am glad to meet you. He's kind of practical experience, you know, wherein, you know, we show him daily, day in, day out, how he was working. He rented a computer on rent, I think, that time. At that time it was around 500 per month. Yeah, 500 per He rented a computer to you. No, he, for his own business, Okay. he was riding to make the quotations, you know, to do different things. That was a different, I think, story. We started from scratch now. Yeah. So actually it was very interesting aspect of our life. Whenever we look back, so it excites us how we had worked. That was actually really amazing. It was tough but amazing and very successful. Yeah, now he's quite successful. He's first time entrepreneur. His father was a scientist in Siri Pilani, Okay. and he was my senior. We were studying in Indore together at DAVV, and I think he didn't do any job or something. He started his own business immediately. He was, you know, quite successful, and we were always aspiring that we will be, you know, like him someday. So his journey also inspired you a lot. Yes, definitely. sir. And We are also amazed to see him. He is most successful in our group. He is one of the most dynamic person we can Yeah. see in today's time. He inspires lot of youth also, and the way of his working style is there. It also inspires me. Thanks to you. great. नरेश साहब एक्चुअली मशीन मेकर जो हमारा एक इनिशिएटिव था, वी नीड एज आई टोल्ड पीपल हु आर एक्सेसिबल, हु कैन शेयर देयर विजडम टू द यंगर जनरेशन, एंड दैट इज वेयर वी रोट, आई वाज एबल टू राइट अ बुक कॉल्ड चेंज मेकर्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग. आई थिंक वी शुड गिव a copy to you. Yes. We are having a stall in Hall 9. Okay. I welcome you to our stall. Sure. Please take a copy where you can read the stories of. I will make a visit. Thank you. Thank you. Thank you, Naresh bhai. Thank you for all your support. Thank you, Naresh. Yeah, we'll go to meet Arvind bhai. या वालग्रो का जो कंपनी है वो हॉल 7 में है, हम बिल्कुल सामने. Okay. आज भी कुछ उनसे सीखने को मिलेगा मुझे लग रहा है. राकेश भाई, अरविंद भाई से मैं बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ, करीब 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को उनके साथ जो लास्ट ईयर जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था बहुत याद है. जब भी आप उनसे मिलो कुछ ना कुछ नया बात करते हैं, नए आइडियाज़, मतलब जैसे कहते 18 साल के बच्चे में कैसे एनर्जी होती है, डिट्टो वही है. तो मुझे उनके बारे में यही अच्छी क्वालिटी लगती है. अरे ये रहे, अरे अरविंद भाई, आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आपसे मिलने आए हैं. अच्छा गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. मैं जस्ट Arvind bhai, always young, forever young. फॉरएवर यार. Inspiration है ये टाइम इनकी एनर्जी का जवाब नहीं है, अरे यार क्या बात कर और इनकी स्माइल का भी कोई जवाब नहीं है. कि हम दोनों के लिए तो आप ट्रू चेंज मेकर हो ही हो, और हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो. हम आपसे कुछ और मांगने आए हैं, आपसे कुछ और सीखने के आए हैं. 1 सेकंड हुआ है. ये हमारे शुक्ला साहब है, पीटीसी इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ओ वाह, शुक्ला साहब नमस्कार. और इनको 1 सेकंड हुआ कि सर मैं एक आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, चेंज मेकर का बुक. अरे क्या टाइम लाइए, बुक लाइए. Great. अरे वाह, इससे अच्छा बुक नहीं हो सकता और गिफ्ट नहीं हो सकती. ग्रेट. इसमें एक चेंज मेकर में भी मेरा स्टोरी है, और ये 2 भी है, तो हम 3 चेंज मेकर आज एनजीमेक में है. अच्छा, चेन मेकर बनाने वाले भी इधर ही हैं. हाँ, हरिशंकर change maker बनाने वाले भी हैं. ही इज द ऑथर, बट and he is the most dynamic author you will ever see in your life. मैंने आप ही रखो. एंड वेरी लाइक इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ वेल चेंज मेकर. हर स्टोरी से आपको अलग अलग सीखने को मिलेगा. पीपल मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, और अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं तो उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं हम लोग. ऑब्स्टिकल्स आए तो उनको कैसे कवर करें. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम. शुक्ला साहब, खास करके अरुण जी की जो स्टोरी है, हम सब चेंज मेकर्स को भी इंस्पायर करती है. अरे यार, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद एग्री करेंगे कि अरुण भाई इज अ डिजर्विंग चेंज मेकर. यस सर. इन्होंने ये आई थिंक आप मैनेजर के तौर पे थे, पीटीसी में आए. जब मेरा कैरियर और इनका कैरियर स्टार्ट था,
ये पीटीसी में मैनेजर के तौर पे थे, प्रोडक्शन मैनेजर और पूरा प्लान हेड करते थे। ओके। आज सर भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुके हैं वही कंपनी में, तो बहुत बड़ा एग्जांपल है कि एक ही कंपनी में अगर काम करते करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन सकते हैं। वो तो बहुत बड़ा स्टोरी है। So he has changed not only the company Yeah. but himself as well. Yes. That's what I Yes, believe. yes, yes, That's yes. why इतना अच्छा उनका जो ग्रोथ एक हुआ है। तो सर हमें आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखना है। सर हमें आपसे तो सीखना है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनको भी सीखना चाहिए कि एक ही कंपनी में अगर कंटिन्यू करते हो तो आप एक स्टेप से लेकर 100 स्टेप तक भी जा सकते हो। इट इज़ अ लर्निंग फॉर ऑल यूथ सर। स्टोरी हो गई आपकी। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सर का एक थोड़ा ब्रीफ स्टोरी कभी लाइक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ने मुझे मोटरसाइकिल पे देखा है, आज यहाँ से निकल रहे थे यार वेल्ग्रो, सीधा अरविंद जी का है, उसको मिलना है, ऐसा करके आए। जैसे ही मैंने देखा तुरंत हमने पूछा अरविंद जी किधर। सर हमारा अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कहीं पे भी देखोगे, टाटास के बारे में सब लोग सुना है, जी जी। अंबानीस के बारे में लोग सुना है, हिंदुजास के बारे में सुना है, बट हमारे को ऐसे लोग आज की डेट में इंडिया ग्रो कर रहे हैं, हर जगह में ग्रोथ है, आप देखो हर जगह में ग्रोथ है, बट हमारे पास ऐसे लीडर्स भी चाहिए जो अप्रोचेबल है यंगर जनरेशन के लिए और गिविंग करने के लिए उनका एक माइंड चाहिए। तो हमारा चेंज मेकर का ये जो इनिशिएटिव वो था कि हमारे पास ऐसे हीरे हैं इंडिया में और वो लोगों को सपोर्ट करें। वी आर वेरी हैप्पी। 1 साल हो गया हमने ये बुक लेके आए और एनजी मैक में एक्चुअली हमारा 4 चेंज मेकर्स है, बट एक अभी है नहीं इधर, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट हम इन तीनों को लेके आए। अभी राकेश साहब का हमने स्टॉल में गया, वहाँ पे दूसरा एक एंटरप्रेन्योर मिला। एवरीवन, सो इंडिया का जो स्ट्रेंथ है उसका लोग है, पीपल लाइक दम। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू मीट यू, जहाँ पे आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्किल, किसी को स्किल नहीं मिल रहा है, एंड यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और लास्ट 3 डिकेड्स एंड मोर कंपनी में मैनेजर बन के आया है और आप आज की डेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एंड इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। हमारा भी, मैं बताऊं, हिम्मत बढ़ रहा है इनको देख के, मोटिवेशन भी मिल रहा है। हम सब के आज के जो चैलेंजेस हैं एमएसएमई के लिए क्या होता है कि एक तो भाई आपको रिलायबल जिनके ऊपर हम डिपेंड कर सके ऐसा वर्कफोर्स भी चाहिए, ऐसा स्टाफ भी चाहिए। सिंगल आदमी से कोई सक्सेस नहीं होता, टीम तो चाहिए। राकेश आप मेरी बात से एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे। तो हमें आपसे शुक्ला साहब ये तो सीखने को मिला ही मिला, अगर परसिस्टेंस है हम एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल हर बिल्कुल। एक दूसरे से, हर हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं और सब ये, और एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं जी। और वही चेंज मेकिंग हम लोग जो बात करते थे शुरू में भी, तो एक दूसरे से मोटिवेट होते थे कैसे करना है, कैसी चीज़ों को आगे बढ़ना शुक्ला है। साहब आपसे एक चीज़ मांगनी है मुझे आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए आज के यूथ के लिए कि उनको पता होना चाहिए कि उनके एक जगह टिके रहने से कंपनी की क्या ग्रोथ होती है और उनकी क्या ग्रोथ होती है। तो आप उनके लिए प्लीज़ कुछ बोलिए, और मैसेज हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जाएगा तो शायद भारत देश में बहुत इसका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं इतने कहूँगा कि आप अपने हमेशा सेल्फ से बाहर निकलें, आप पैट्रियटिज्म, आप कंट्री को सोचें। जब आप कंट्री को सोचेंगे, वो डिवोशन और डेडिकेशन आएगा, तो आप कंट्री के साथ साथ सेल्फ, आपकी ग्रोथ अपने आप ही होगी, कंट्री मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। और ये कैसे होगा? जब आप एक जगह पे अपने आप को डिवोट करेंगे, डेडिकेट करेंगे, तो डेफिनेटली सबकी इसमें सक्सेस मिलेगी। वेरी वेल। बहुत आगे जाएंगे, हर आदमी आगे जाएगा, जो करने वाला वो भी आगे जाएगा। और हमारी कंट्री जो आज उस स्टेज में है, हम लोग बहुत बड़े आगे लेकर के अपने टारगेट बना के चल रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड में लीड करेंगे, हम उस जगह पे बहुत जल्दी जाके पहुँचेंगे। बहुत सही कहा, Fantastic, बहुत sir. सही कहा कि बहुत जल्दी हम लोग लीड करने वाले हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा यूथ के लिए, तो आज का यूथ तैयार तो है लड़ाई करने के लिए, लेकिन उसको स्किल का इश्यूज है। अगर वो स्किल सीख ले वे, अभी सवेरे दर्शना इंडस्ट्रीज़ के नीलेश भाई पाटिल भी मेरे साथ बैठे थे, तो वो आज उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चालू किया है। यूथ का चैलेंज यही है कि यूथ तैयार नहीं है स्किल करने के लिए, उसको इमीडिएट पैसा कमाना है। 2 साल यहाँ नौकरी किया, 2 साल यहाँ नौकरी किया, पगार डबल कर दिया, तीसरे ईयर में अगर वो चेंज करता है, मालिक को मालूम होता है यार इसको तो कुछ नहीं आता है, उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। आज का यूथ का फ्यूचर ख़राब हो रहा है जंपिंग का एटीट्यूड से। तो शुक्ला जी आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर एक ही जगह पे हम लोग अगर काम करते हैं और एवरी डे अगर कुछ ना कुछ 1% भी सीखेंगे, तो साल का 365 दिन है,
365% हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये शुक्ला जी ने आज हमें एग्जाम्पल दिया है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, शुक्ला जी ने जो बोला, अरविंद जी ने जो बोला, अगर हम एक ही जगह पे टिके रहते हैं तो देखिए कंपनी भी आप में इन्वेस्ट करती है, आपको ट्रेन करती है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, खास करके मीडियम स्केल और लार्ज स्केल कंपनी में, एमएनसीज में देखा है, रेगुलर बेसिस पे वो ट्रेन करते हैं। कोई भी आपके स्किल नहीं हो, डजेंट मैटर, आप में वो परसिस्टेंट होना चाहिए, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए। आज मेरे कंपनी में मुझे लगता है कि नहीं, ये बंदा काम कर सकता है, इसमें एबिलिटी है, ये कंपनी को आगे लेके जा सकता है, तो कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है, पैसा भी करती है, टाइम भी इन्वेस्ट करती है। दोनों कंपनी भी बेनिफिट होता है उसमें और उस बंदे का भी बेनिफिट होता ही है। तो मेरे ख्याल से ये अगर कोई टिकता है, और ये अरस परस है, दोनों को एक दूसरे में ट्रस्ट रखना है, एम्प्लॉय को भी कंपनी में ट्रस्ट रखना है और कंपनी को भी एम्प्लॉय में ट्रस्ट रखना है। आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप। और जैसे आप बात कर रहे हो कि खुद को आगे नहीं रखना है, हमें एक लार्जर पिक्चर को देखना है। शुक्ला जी ने देश की बात की, मैं बोला अगर इतना भी बड़ा पिक्चर नहीं देख सकते हो, एटलीस्ट जहाँ पे आप कर रहे हो, जो कंपनी आपको पैसा दे रही, जिसकी वजह से आपका घर भी चलता है, तो एटलीस्ट उसके बारे में भी अच्छा सोचेंगे ना हम, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा सकते हैं। शंकर और साहब, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। जी 1977 यू बोर्न, यस सर। ओके, या हमारा समाना निकल गया। हाँ स्किल इज अ रियल प्रॉब्लम। यस शुक्ला जी जिस हिसाब से सोचा है, हम जिस हिसाब से सोचा है, आज की पीढ़ी ऐसे सोचेंगे नहीं। आप वो समझो, उनके चैलेंजेस हैं, मैं समझ रहा हूँ। चैलेंज इसके अंदर लाइक मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वही है कि आज की डेट में जॉब शॉपिंग और जॉब होपिंग, हम लोग बार होपिंग बोलते हैं, शॉपिंग बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, तो आज का यूथ वही कर रहा है। आज यहाँ पे जॉब लिया, दूसरी जगह वहाँ पे लिया, तीसरी जगह वहाँ पे लिया, एंड प्लस जो मून लाइटिंग भी आजकल चल रहा है, एक जगह पे काम कर रहे हैं, दूसरी जगह भी कर रहे हैं। सो इसकी वजह से उनको शॉर्ट टर्म तो ग्रोथ हो रही है, तो मैं बट वो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जो आप जो बोल रहे हैं कि एक अपने को एक प्रॉपर फाउंडेशन बनाना है, वो फाउंडेशन नहीं बन पाएगा। कल्चर नहीं, शंकर साहब अब सुनो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये बहुत बड़ा मसला है। हम बात करेंगे तो 2-3 घंटा बात कर सकते हैं। नहीं, और मुझे- आप एक चीज समझो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑटोमेशन। लेकिन उसके लिए भी अपने को स्टाफ तो चाहिए और कल्चर भी चाहिए, स्मार्ट चाहिए। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, वी कैन नॉट हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल लाइक अर्लियर, एब्सोल्युटली। बट वी नीड टू हैव राइट काइंड ऑफ पीपल। नाउ आपको आपके हिसाब से सोच के लोग नहीं मिलेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सेप्ट किया हूँ। मैं जब स्टार्ट किया था अपना करियर या 27 ईयर्स पहले, मेरे को ये डर था शायद आज मेरा नौकरी निकल सकता है, डर है जॉब का। आज एंटरप्रेन्योर का डर है, कौन रिसाइन करके जाएगा। नहीं, उसके लिए देखिए मैंने बताया दोनों साइड पे ही होना चाहिए। आज हमको भी कल्चर ऐसा नहीं है। डेवलप करना है। नहीं सर, नहीं सर, वो कल्चर डेवलपमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट सेंचुरीज, डिकेड्स। आज आप स्टेप लोगे, नर्सरी में जाके बच्चे को फाउंडेशन सिखाना पड़ेगा। करेक्ट। मैं सीरियस मुद्दा बात कर रहा Yes. हूँ। 20-30 ये बच्चे लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये एजुकेशन और जो सिस्टम सालों साल से जो बन रहे हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दैट। बट व्हाट वी कैन डू, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स, एवरीवन। इफ वी कैन हैव गुड पीपल, वी विल ग्रो, बिकॉज पीपल आर सो इम्पोर्टेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा आज की डेट में, आज का पीढ़ी को समझना पड़ेगा, उनको अपने आप एम्ब्रेस करना पड़ेगा और उनके ऊपर चेंज लेके आना पड़ेगा। एंड आई बिलीव, फॉर एग्जाम्पल, आई रियली अप्रिशिएट अरविंद भाई, ही गोस एंड डू दोस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। तो वो एक चीज़ मेरा इतना, आई अप्रिशिएट द वे शुक्ला साहब डन। मैं बोला हमको भी अडॉप्ट करना, जितने भी चेंजेस हैं हमारे वर्क कल्चर में, वो भी हमें लाने ही पड़ेंगे अपने फैक्ट्रियों में, ऑफिस में। उनके हिसाब से उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, वो 100% नहीं 50% तो दे सकते हैं, और स्लोली स्टेप बाय स्टेप मेरे ख्याल से हम अचीव तो कर पाएंगे। But चैलेंजेस है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता है, अगर कोई नया इंजीनियर है सुन रहे, देखो, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ वर्किंग फॉर इंडिया बिकॉज ही ओनली मैन्युफैक्चर्स केबल्स विच इज़ स्पेशलाइज्ड। सो एवरी टाइम R&D लगता है, एंड उनका चैलेंज है, उनको लोग नहीं मिलते हैं सीरियसली। एंड ये सिर्फ शंकर का चैलेंज नहीं है, राकेश जी का भी चैलेंज है, अरविंद भाई का भी चैलेंज है। तो क्या करते हैं, अभी चैट GPT आया है, जनरेटिव AI है, मेरे को कंटेंट राइटिंग में लोग नहीं मिलते हैं। आज के डेट में चैट GPT इज अ गुड सपोर्ट। तो इट इज नॉट दैट आई वांट टू यूज चैट GPT एंड रिमूव पीपल, इट इज दैट आई डोंट गेट अ पर्सन। So you have to use chat GPT. नो, वी नीड टू अडेप्ट, एंड ऑल्सो बेसिक लेवल से हमारे को स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने बोला, मोदी साहब ने बहुत सारा स्कीम्स आगे लेके आया है, उसको हमारे एरिया में करके हमारे को करना है। एंड आई थिंक वो हमारा चेंज मेकर्स का काम है।
आप जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, वेरी हैप्पी। हमने ऐसा एक डिस्कशन इधर किया। तो जो 12 चेंज मेकर है ना, वो बेसिक से यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उनके पास बेसिक का नॉलेज ही नहीं होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो यही मिसिंग आज की जनरेशन में है। हमारी जनरेशन में रिसोर्सेज कम थे, तो हमने हमारा इंटेलेक्चुअल यूज़ किया, बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आपने जैसे बताया, आज का यूथ के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़बरदस्त है, हमसे ज़्यादा स्किल है। अगर वो बेसिक फंडामेंटल सीख लेगा ना, तो हमारे से ज़्यादा रॉकेट गति से वो आगे बढ़ सकता है। सर, वो उसमें आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है। सर वो आएगा when they are challenged. Yeah. The youngsters are not challenged. आज but it will come because ये सर्कुलर है, दुनिया बदलते रहते हैं। आज उनके पास जो रिसोर्स है जिसके लिए चैलेंज नहीं है, जिस दिन चैलेंज आएगा वो लोग चेंज करेगा। एंड हमारा जॉब है वो नया पीढ़ी को उसको तैयार करना। एग्जैक्टली। एक छोटा सा मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में रखना चाहूँगा। हमारे ज़माने में क्या था, हम थर्ड जनरेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे दादाजी को क्या था, सर्वाइवल का इशू था। फिर हमारे जो सेकंड जनरेशन हमारे फादर मदर है, उनको क्या सस्टेन करना था। हमारी जनरेशन को क्या है, वी गॉट ईच एंड एवरीथिंग। हम ट्रैवल करता है, एरोप्लेन में करता है, मर्सिडीज़ में करता है, आईफोन है, हमारे पास क्या नहीं है, तो हमें उसकी शायद वैल्यू भी नहीं है मेरे ख्याल से। वो एक बार फीलिंग अगर आता है, जैसे कि आपने बताया कि वो साइकिल है, वो साइकिल आएगा, जब वो साइकिल आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो मेरे ख्याल से वो चेंजेस, तो फोर्स चेंजेस को बोलते हैं, वो आएगा मुझे लगता है। Yes, we need to wait for that. 50-60 years जब तक हम नहीं होगा। हाँ। बट हमको क्या करना है, हाँ। हमको आज के लिए प्रिपेयर हाँ, होना है, हाँ। आज का सिस्टम के साथ काम करना है। एंड और- आई थिंक वी विल टेक ए ब्रेक। लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से। हम सब दूसरे बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जॉब करते हैं दूसरे होते हैं। हमें कल्चर में अगर चेंज करना है, इफ़ यू टू स्टार्ट दैट चेंज, हमारे घर से ही चेंज करना पड़ेगा, हमारे बच्चों से ही वो करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कहीं जाके जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो मेरे ख्याल से जो होता है चैरिटी बिगिंस एट होम जो बोलते हैं, वो हमें करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर वो करते हैं तो गॉड विलिंग वो दिन 50-60 साल नहीं, 10-20-25 साल में आ जाए तो अपने देश के लिए अच्छा है। इनफैक्ट इट इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड। चेंज मेकर क्या है, ये है, हम ना रुकता नहीं है। हम ऐसा एक एक टॉपिक आप लेके जाओगे, हम अपना हार्डवर्क करेंगे फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल। थैंक यू वेरी मच। Thank you. ऑल द चेंज मेकर। शुक्ला साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।